kingdom fungi is further divided into various classes. Those classes we are going to study today. Like first class is Phycomycetes. In this class, those fungi are being kept which are possessing these features. First of all, where they are going to grow, aquatic places or the decaying wood, or they are just going to grow in the damp places, or they could be obligate parasite. Two kind of parasites are there, facultative and other one is obligate. Facultative means they can change into saprophytic mode of nutrition when no host is available. Rest they will be parasite. But obligate parasites are those parasite which will be parasite. That means they cannot move into other mode of nutrition, that is saprophytic. They will be strictly restricted to the parasitic mode only. While facultative can shift into that saprophytic when suitable host is not available. Then after that, it is given in them that mycelium is aseptate. Aseptate I have explained you in previous classes, that when a partition is present in between, suppose this is a mycelium, अगर यहाँ पे cell wall आ जाएगी, that means septum, partition is present, but here we can see it is not present, that's why it is aseptate. Synocytic means existence of more than one nucleus. So as there is no partition, so it would be having so many more than one nucleus in this mycelium. Next, reproduction can occur through zoospores. Zoospores, this you are going to study in your class 12th also. Zoo means motile here, and spores we know resting structures. So they have flagellated motile spores as an asexual reproductive structure, or aplanospores. Aplanospores are just opposite to it. These are non-flagellated as well as non-motile, and these are structure for asexual reproduction. Next, the question arises, if these are zoospores, aplanospores, then in diagram I have written sporangiospores. What is this? The thing is that the structures or spores which are formed inside the sporangium are called as sporangiospores. If these are flagellated, then these are called zoospores, and if these are non-flagellated, then these are called as aplanospores. It depends upon which kind of spores are there. Sexual reproduction occurs through zygospores. I have written here for you, it was not there in the notes, but here I have written diploid reproductive stage in many fungi created by nuclear fusion of haploid cell. Single cell is there. Suppose single cell is there, another single cell is there, they will fuse. After fusion, what will happen? This haploid cell fuse करेगा, क्या बनाएगा? Diploid structure बना देगा. This structure is called as zygospores. दो mycelium आएंगे, fuse करेंगे, ये cells आएंगे, fuse करेंगे, और जो diploid structure बनाएंगे, that is called as a zygospores. Now question is, what is the difference between here and there? So here what is happening? Individual cell, a mycelium is there, it will convert into sporangium. उसके अंदर का जो nucleus है वो divide करने लगेगा, and it will form the structure which is called as a zoospores या planospores. But in zygospores, what will happen? Two different mycelium will come together, or two different cell will come together, and they will fuse. Firstly they will form diploid structure, फिर उसमें meiosis होगी, and then the haploid प्रोजनी विल बी फॉर्म. जबकि यहाँ पे जाइगस जो आपके जूस्पोर्स है, यहाँ पे नेचुरली क्योंकि फंजाई की बॉडी हैप्लॉइड होती है, तो यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स ही बनेंगे. एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमैसिटीज इज राइजोपस. वी हैव सीन दिस फंगस ग्रोइंग ओवर द ब्रेड. Next class of Phycomycetes is Ascomycetes, which is also known as sac fungi. What are the features of the fungi which are kept in Ascomycetes? First of all, they can be unicellular, only unicellular. It is yeast, or they can be multicellular. Mode of nutrition could be saprophytic, that means feed on the dead and decaying object, or it can be parasitic, that means they live on the body of host or inside the body of host to derive the nutrients from them. Maybe coprophilous. This term is very important. That means coprophilous. Coprophilous means growing on the dung. Over the dung also fungi can grow. That is the example is coprophilous. Example is given here, Pisiza. Then mycelium septate and branched. Here mycelium has septum. जो भी mycelium है उसमें septum present होगा. That's what is called septate. And branches are also present in them. Reproduction. Asexual reproduction में क्या होगा? Exogenously produce conidia. What are conidia now? I have just explained here. A
spore produced asexually by various in various fungi at the tip of specialized hyphae. हाइफा होगा उसके ऊपर स्पोर्स अगर प्रोड्यूस हो जा रहा है तो इसको हम बोल देंगे कोनिडियम. देन रिप्रोडक्शन asexual we have just read, कोनिडिया के थ्रू हो रहा है. Then sexual reproduction occurs by ascospores produced in asci present in fruiting body called ascocarp. ये जानना ज़रूरी है क्या है ये. asci sexual spores bearing cell. एक सेक्सुअल स्पोर है जिसके अंदर एक सेल है. एस्कोकार्प इंटरवोवन हाइफे है. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आर दीज. ये है क्या? लेट मी एक्सप्लेन यू. If I'm just talking about, we are just studying here कि what are asci, ascospores and ascocarp. ठीक है. Now what happened to suppose two cells ईस्ट की बात ले, दो सेल्स अलग अलग थे, आके एक फंजाई में मेल फीमेल नहीं होता, एक को पॉजिटिव स्ट्रेन नाम देते हैं, एक को नेगेटिव स्ट्रेन नाम दे देते हैं. मतलब एक पॉजिटिव स्ट्रेन का एक नेगेटिव स्ट्रेन का, नो मेल फीमेल. सो ये आया इनके न्यूक्लियस. क्या हो गया न्यूक्लियस? पहले प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हुआ, प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी हो गई, फ्यूज़ हो गया, न्यूक्लियस फ्यूज़ हो गया. क्योंकि इसकी पेरेंट बॉडी हैन हैप्लॉइड होती है, फ्यूज़ हो गया. यहाँ पे क्या बना दिया? 2n. अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है इसको हम क्या बोल देंगे? एस्काई. अब क्वेश्चन एस्काई बोल दिया, हाँ एस्काई बोल दिया. अब ये जो इसके अंदर सेल है इसमें क्या होगा आपका? मियोसिस हो जाएगी. मियोसिस, यस मियोसिस हो जाएगी. 2 से कितने सेल्स बनेंगे? फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट हुई 2 सेल्स, फिर उसके बाद 2 से 4 सेल्स बन गए. अब 4 सेल में क्या हो जाएगी? फिर से डिवीजन होगा. टोटल हाउ मेनी? इसके अंदर न्यूक्लियस पहले बोलेंगे, नॉट सेल. एल से पहले कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 1 2 3 4. फिर उसके बाद उसमें सेल वॉल डिपोजिट हो जाएगा, इंडिविजुअल सेल. अब क्योंकि इस एस्काई के अंदर ये सेल्स बने हैं जो कि रेस्टिंग स्पोर्स की तरह वर्क करेंगे, इसको हम बोलेंगे एस्कोस्पोर्स. एस्कोस्पोर्स बोल दिया हमने इसको. अब यहीं पे जो इसकी माइसीलियम थी, पूरे बाकी जो फंजाई हैं इसके अंदर बहुत सारे एस्कस प्रेजेंट हैं. ये जो पूरी फंजाई की माइसीलियम है जिसके अंदर बहुत सारे एस्काई प्रेजेंट हैं, दिस माइसीलियम जिसके अंदर एस्काई प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम बोल देंगे एस्को कार्प. This structure is there. So we have read. Example is Aspergillus, Saccharomyces cerevisiae. ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे, जिसको हम बेकर्स ईस्ट बोलते हैं या ब्रीवर्स ईस्ट बोलते हैं. इस नाम को याद कर लीजिए, 1 मार्क्स में आता है ये एग्जाम में 12th में. देन बेसिडियोमाइसिटीज. बेसिडियोमाइसिटीज मतलब इसको क्लब फंजाई बोलते हैं. इसका बेस्ट एग्जाम्पल मशरूम है जो आप सबने देखा है. अब इसमें कौन से फंगस को रखा गया? विच कैन ग्रो ऑन द सॉइल. क्या आपने देखा होगा लकड़ी के ऊपर भी फंगस ग्रो कर जाता है, वाइट अम्ब्रेला शेप जैसा लॉक्स पे. और इवन इट कैन बी पैरासाइट. पैरासाइट में कौन से फंगस आते हैं? रस्ट एंड स्मर्ट्स. इन रस्ट इफ़ यू हैव सीन क्रॉप्स, तो उसके ऊपर लगता है कि जो क्रॉप की जो सीड है या ग्रीन है उसमें कुछ जंग जैसा लग गया, मतलब ब्लैक शूट जैसा आ गया. दीज आर द रस्ट. while in smurts, if you have just noticed in grains like corn or in rice, तो उसमें स्मर्ट्स फंगस अपनी कॉलोनी बनाता है एंड दैट ग्रुप ऑफ फंगस आर कॉल्ड एज स्मर्ट्स. माइसीलियम इनमें भी कैसा होगा? सेपरेट होगा, ब्रांच होगा. और इनमें 2 टाइप के माइसीलियम हो जाते हैं, एक यूनिन्यूक्लिएट हो जाता है, दूसरा डाइकैरियोफेस. यूनिन्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस केवल एक होगा, डाइकैरियोफेस मतलब न्यूक्लियस उसमें कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. अब इसमें रिप्रोडक्शन होगा वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन, यानी कि फंगस का कोई हिस्सा टूट गया, कहीं पे गिरा, एंड वो फिर से क्या बना देगा? न्यू फंगस बना देगा. सेक्शुअली रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ड्यू टू डाइकैरियोफेस. अब इस टर्म को हमें याद रखना है कि व्हाट डज इट मीन? डाइकैरियोफेस. अभी एक्सप्लेन कर देंगे आपको, बट डाइकैरियोफेस याद रखना है आपको. देन आफ्टर दैट विच अदर टर्म यू हैव टू रिमेंबर हियर कि डाइकैरियोफेस मेक्स फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प हैविंग बेसिडिया. अब ये क्या बना रहा है जो स्ट्रक्चर? बेसिडियो कार्प, जिसके अंदर क्या होगा? बेसिडिया. और इसके अंदर जो स्पोर्स होंगे उनको हम क्या बोल देंगे? बेसिडियो स्पोर्स. बेसिडियो स्पोर्स पढ़ते हैं अभी.
इतना हमने देख लिया। डाइकैरियोफेज मेक्स फ्रूटनिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प हैविंग बेसिडिया, जिसको हम बोल सकते हैं बेसिडियोस्पोर्स। इसको समझने से पहले थोड़ा सा फंगस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर बेसिडियम, यहाँ पे जो गिल्स हैं इसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे दैट आर द बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, व्हाट इज दैट, बेसिडियम। देन दिस वी हैव जस्ट सीन, गिल्स को आप और एनलार्ज करोगे, देखो इसमें ये जो अम्ब्रेला था बेसिडियम, आई हैव सीन बेसिडियम इट इज देयर स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो स्पोर्स है व्हाट आर दिस, बेसिडियो स्पोर्स। इतना देख लिया। फिर इनसाइड बेसिडिया सिंगुलर, इसको हम बेसिडियम बोलते हैं। कैरियोगैमी एंड मियोसिस अकर्स, उसके अंदर कैरियोगैमी दैट मीन्स न्यूक्लियस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, which is followed by meiosis occurs which is resulting in the formation of फोर बेसिडियोस्पोर्स। इससे 4 बेसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे। उसका एग्जांपल है मशरूम। I was telling you about dikaryophase. Dikaryophase means in a single cell how many nucleus are going to occur, 2 nucleus are going to occur. But how does this condition arises? So the member of Basidiomycetes, first of all they are existing in the form of mycelia. Where do this mycelia is growing? It is growing not deep but under a layer of soil, you can say inside that soil it is growing. Septate है, ठीक है, न्यूक्लियस इज देयर, सेप्टेट इज देयर। इसमें एक को बोल दिया हमने पॉजिटिव स्ट्रेन का, दूसरा नेगेटिव स्ट्रेन। आई हैव टोल्ड यू, मेल फीमेल नहीं कैटेगराइज करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेन का बोल दिया। ये दोनों ग्रो कर रहे थे, ग्रो करते करते क्या हुआ, इनकी जो सेल वॉल थी वो पास में आ गई, एक दूसरे के पास में। आप जैसे ही पास में आई तो इनके पास की जो लेयर है ये डिजोल्व कर जाएगी, डिजोल्व केमिकल रिएक्शंस होंगे, ये हट जाएगी वहाँ से। अब क्या होगा, जो इनकी सेप्टम तो प्रेजेंट था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वॉल थी वो डिजोल्व हो चुकी थी, तो सेप्टम प्रेजेंट था। जैसे ही ये फ्यूज हुआ तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, दोनों का न्यूक्लियस साथ में क्यों को एग्जिस्ट कर रहा है, को एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए इसको हम बोल देंगे डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोफेज बोल दिया। अब ये माइसीलियम जिसके पास 2 न्यूक्लियस थे, ये डिवाइड करेगा। अभी न्यूक्लियस फ्यूजन नहीं हो रहा है बट वो डिवाइड करता चला जा रहा है, ठीक है, डिवाइड कर रहा है। अब ये क्या करेगा, एक टफ्ट ऑफ हाइफे, हाइफे मतलब ये जो माइसीलियम इंडिविजुअल यूनिट को माइसीलियम वो हाइफे बोलते हैं, ग्रुप को क्या बोलते हैं, माइसीलियम। तो ये जो हाइफे था इंडिविजुअल यूनिट, एक टफ बना लेगा, स्ट्रक्चर बना लेगा। इसके ऊपर एक जो ये ऐसे अम्ब्रेला से स्ट्रक्चर आ जाएगा, जो भी आपने बेसिडियम पढ़ा था, जिसको हम कट करते हैं तो इंडिविजुअली वो कैसा दिखता है, ये बेसिडियम था ना ये। अब यहाँ पे क्या आ गया, गिल्स आ गए, ये था। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इनसाइड इट व्हाट थिंग इज हैपनिंग, ये टफ ऐसे सेल्स प्रेजेंट रहे होंगे, 2 न्यूक्लियस। अब ये 2 न्यूक्लियस जो थे वो आपस में क्या कर गए, फ्यूज़ कर गए। फ्यूज़ करने के बाद इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी डिप्लॉयड बन चुके हैं और हमें पता है फंगस की बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉयड बॉडी, हैप्लॉयड होती है। यहाँ पे कितना हो चुका है, 2n। तो इसको हैप्लॉयड करने के लिए इसमें क्या हो जाएगी, मियोसिस। आपको अगर याद हो क्लास 10th का, तो मियोसिस इज दैट काइंड ऑफ डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट्स हाफ। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर से n। अब जो इसके अंदर राउंडेड स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं, these are called as a बेसिडियो स्पोर्स। इनको हम बेसिडियो स्पोर्स बोलेंगे। जब ये बर्स्ट करेंगे, एयर से फैलेंगे, तो फिर से ये माइसीलियम बनाएंगे। अब डिपेंड्स अपॉन कि स्पोर के अंदर पॉजिटिव स्ट्रेन वाला फीचर गया है कि नेगेटिव स्ट्रेन वाला, इट कैन मेक अगेन 2 माइसीलियम ऑफ 2 डिफरेंट वैरायटी स्पोर्स, डिपेंड्स अपॉन पॉजिटिव और द नेगेटिव स्ट्रेन। The last class which we have to study that is the Deuteromycetes under fungi. इसको fungi imperfect type बोलते हैं। Fungi imperfect type it is said because it's everything is known about the member of these fungi, but their sexual cycle is not known. That means any of the cycle is missing. Basically, sexual cycle of reproduction is not known in these fungi. Which organism come under this category? Alternaria. Then it's they can be existing as a parasite or they can be saprophyte, that means feeding on the dead and decaying object. Then mostly decomposers, mostly these are the member of decomposers. अब अल्टरनेरिया का डायग्राम बना है, हाइफे है, उसके टिप पे स्पोर्स हैं, देखिए स्पोर्स की एक चेन है। सो different structures are there which its real link I have shared you in previous classes.
which kingdom Plantae and kingdom Animalia are the easiest topic. Plantae